Hello students, today we start on principle of virtual work or unit load method and Maxwell's law of reciprocal theorem. That topic from unit number 2. This topic important for theory purpose, also for numerical purpose. Here we find the deflection by unit load method and also by Maxwell law of reciprocal theorem we find the deflection. So start with Bates law. First we see basic concept of Bates law, that is important role play in a virtual work. So start with the Bates law or relay theorem. Students, हमने स्ट्रेन एनर्जी मेथड में हमने बीम स्ट्रक्चर लिया था और जो कि वन एंड फिक्स था और अदर एंड पे हमारा लोड एक्ट कर रहा था, दैट इज पी. तो यहाँ पे हमने स्ट्रेन एनर्जी जो निकाली थी, दैट इज इक्वल टू द 1/2 p into delta. So students, here we find this is the external work, so that is equal to the due to the load p and the energy stored, total energy stored in a member, so that is 1/2 p delta, right? So that is the strain energy. तो ये हमारा क्या था, एक्सटर्नल वर्क. एक्सटर्नल वर्क मतलब ड्यू टू द लोड पी, जो हमने एक्सटर्नल लोड पी लगाया है उसके कारण वर्क हुआ यहाँ पे इस मेंबर में, जो है कोई डिफॉर्मेशन डेल्टा हुआ, तो दैट इज द वर्क इज 1/2 p delta, that is equal to strain energy. Here we see this deflection, same member, any load p. Here we deflection showing the delta star. Here is the another important role play by the force Q, that is the internal force. That force is opposed the deformation occurs due to the P, that is the that denoted delta star. Delta star क्या है, that is the delta star is the difference produced by Q in the direction of P, right? So by this work done is due to the delta star, that is the P into delta, right? So you can say here is the draw the rectangles way. This is the store internal energy, that is the We star equal to P delta due to the P. So students, मेरा कहने का ये मतलब है, जब हम कोई फोर्स लगाते हैं किसी मेंबर पे, तो फोर्स मान लीजिए हमने फोर्स लगाया इन टेंशन वे में, सच लाइक दिस, तो हमारा उस मेंबर में एक इंटरनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा जो कि उस फोर्स का अपोज करेगा, राइट? और जो हमारा फोर्स पी लग रहा होगा उसके कारण जो डिफॉर्मेशन डेल्टा हो रहा होगा, और हमारा फोर्स क्यू लग रहा हो, इंटरनली फोर्स क्यू लग रहा है, तो वो क्यू जो डिफॉर्मेशन होना है उतना नहीं हो पाएगा और उसका डिफॉर्मेशन का अपोज करेगा. सो दैट इज द डेल्टा स्टार, राइट? तो एक्चुअल में जितना हमारा डिफॉर्मेशन हो पाता है उतना नहीं हो पाता, तो जो इंटरनली फोर्स जो अपोज करेगा पी का, दैट we decrease the deformation of delta. So that is the difference. Delta star is the difference between two deflection, right? So by this delta we find the external work P into delta star. Here we see this point. This is the important point. In any structure, material of which is linear elastic. तो इसके लिए जो कंडीशंस होती हैं बिट्स लॉ फॉलो करने के लिए, एक्चुअल में अभी बिट्स लॉ मैं आगे बताऊंगा क्या होता है एक्चुअल में, बिट्स लॉ क्या चीज है. तो पहले ये पॉइंट्स देख लेते हैं. इन एनी स्ट्रक्चर material of which is linear elastic, support are unyielding and temperature is constant, the external virtual work done by P system of forces during the displacement caused by Q system of force is equal to external virtual work done by Q system of forces when the displacement given by P system of forces, right? This is the Bitts law.
तो आप समझे, नहीं समझे होंगे मुझे पता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सीधा कह रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है, इस स्केच के द्वारा मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये हमारी कोई बॉडी है, राइट, दैट इज द बॉडी, लीनियर इलास्टिक बॉडी है, ठीक है। सो हियर वी अप्लाइड एनी फोर्स P. Due to the applied force P, here is the deflection occurs in the direction of Q, right, due to the applied load P, that is denoted by delta 1 star, right। समझे, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। due to the load P, the deflection occurs delta 1 star in the direction of Q, right, that is equal to the deflection due to the force Q in the direction of P, in the direction of P, that is the delta star 2 is equal, that is the Bird's law। हिंदी में भी बता देता हूँ। हम ये जो P फोर्स है, ये कोई डिफॉर्मेशन आएगा, डिफॉर्मेशन मान लिया हमने, कोई भी डिफॉर्मेशन है, वो है डेल्टा 1 स्टार। वो किस डायरेक्शन में आया, क्यू डायरेक्शन में, जो हमारा क्यू फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो इसके कारण जो वर्क डन होगा दैट इज द वर्चुअल वर्क डन, मतलब हम वर्चुअल वर्क डन हुआ वो क्या हुआ आपका, डेल्टा 1 स्टार क्यू, मतलब डिफ्लेक्शन हुआ P फोर्स के कारण, और जो डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में आया, क्यू, तो क्यू का कोई रोल प्ले नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड विर्चुअल वर्क, राइट। सो दिस वर्क इज कॉल्ड विर्चुअल वर्क, दैट इज डिनोटेड बाय WE 1 स्टार, दैट इज इक्वल टू डेल्टा 1 स्टार क्यू। डेल्टा 1 क्या है यहाँ पे, डिफ्लेक्शन अकर्स ड्यू टू फोर्स P in the direction of Q, so that is called virtual work done, that is the delta 1 star into Q, right। तो इसलिए हमने इसको virtual वर्क बोला, क्योंकि ये डिफ्लेक्शन तो किसकी वजह से हो रहा है, P की वजह से, बट हमने यहाँ पे फोर्स कौन सा लिया, Q, so that's why it's called virtual work done by the Q force system, right। सेम इसका अपोजिट, let's delta 2 star is displacement given by Q। अब Q फोर्स के कारण जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज द डेल्टा 2 स्टार, किस डायरेक्शन में हुआ, P फोर्स, जो P फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन होगा बाय P फोर्स सिस्टम, दैट इज द P इंटू डेल्टा 2 स्टार, राइट। अकॉर्डिंग टू द बिट्स लॉ, बिट्स लॉ क्या बोलता है, that work done, both work done is equal, right। so हमने यहाँ पे दोनों वर्क को इक्वल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बिट्स लॉ। तो यहाँ पे आपका बिट्स लॉ फॉलो होता है, तो इस फोर्स के कारण, जब लॉ के कारण हम दोनों फोर्स को इक्वल रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको समझ में आएगा, समझ में आया होगा बिट्स लॉ क्या होता है। यहाँ पे वर्चुअल वर्क डन भी मैंने बताया, तो वो भी समझ में आया होगा। मैंने ये चीजें आपको एनालिसिस करने के लिए बताई कि ये चीज जो फर्स्ट में बताई थी मैंने इसलिए बताई पहले, कि ताकि आप समझ पाए कि यहाँ पे कोई इंटरनल फोर्स कैसे वर्क करता है किसी भी बॉडी में। तो यू कैन सी हियर, राइट। तो यहाँ पे भी कोई यदि हम P इंटू डेल्टा स्टार मल्टीप्लाई करें, जो कि डिफ्लेक्शन हो रहा है ड्यू टू द फोर्स Q, डिफरेंस पैदा हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्चुअल वर्क डन, राइट। सो नाउ वी स्टार्ट स्पेशल केसेस। तो केस नंबर 1, here given is portal frame structures, at the one end, at the one point we applied momentum, and the two, here is the slope is given theta 2. So here let theta 2 is the uh, displacement, sorry, theta 2 here consider displacement, no this is the displacement नहीं है आपका, ये आपका slope ही है। तो let theta 2 is slope at the 2 due to bending moment m1 applied at 1।
देखिए यहाँ पे ये m1 है, m1 बेंडिंग मोमेंट हमने कोई पॉइंट 1 पे अप्लाइड किया, उसके कारण जो स्लोप हमारा आया एट एंड 2 पे, दैट इज द थीटा 2, राइट। एंड सेम स्ट्रक्चर पे यदि हम अप्लाइड करते हैं एट एंड 2 पे मोमेंट अप्लाई करते हैं, दैट इज द m2, और वो हमारा क्या देता है, स्लोप देता है एट पॉइंट 1 पे, ठीक है। सो सी हेयर लेट थीटा 1 is the deflection, sorry, slope at 1 due to moment m2 applied at 2. So by the width law से क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो virtual work done, ये क्या एक्सटर्नल वर्क डन m1, तो क्या होगा यहाँ पे इस पॉइंट पे मोमेंट अप्लाई किया हमने m1 पे, सो दैट इज द m1 इक्वल टू m1 थीटा 1, ठीक है। तो m2 क्या होगा यहाँ पे, m2 थीटा 2, राइट। हियर m जो मोमेंट आ रहा है m1, यहाँ पे देखिए जो m1 है, m1 मोमेंट तो यहाँ लग रहा है, पर जो मोमेंट यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है थीटा 1, वो किस कारण आ रहा है, m2 के कारण आ रहा है, सो दैट्स व्हाई इज कॉल्ड virtual work, or here we write m1 into theta 1, right। here we write m2 theta 2, क्योंकि थीटा 2 जो आ रहा है आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वो किस कारण आ रहा है, थीटा 2 ये m1 के कारण आ रहा है, बट हमने क्या लिया m2, so that's why we called virtual work। so both are equal due to by the Bitts law, we taking both are equal, and here we see the sign convenience, and clockwise direction theta and m positive, and anti-clockwise direction मोमेंट इज नेगेटिव, एंड थीटा ही क्लॉकवाइज में ही आपका नेगेटिव रहेगा। हियर यू कैन सी डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में है तो आपका पॉजिटिव रहेगा, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव रहेगा। तो ये आपका सेम डायरेक्शन में यदि है रोटेशन, तो आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव। हियर यू थीटा जो आपका जो स्लोप है और m है, वो सेम डायरेक्शन में लग रहा है, सो दैट्स वी टेक दिस इज पॉजिटिव, एंड हियर इज टेक नेगेटिव ड्यू टू द अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। सेम हियर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉम्बिनेशन लिया, सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, और अपोजिट में लग रहे हैं तो नेगेटिव। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी में तो डिस्प्लेसमेंट होगा। डियर, हम यहाँ पे वर्चुअल वर्क की बात कर रहे हैं, जो ये फोर्स जो डेल्टा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किसी और फोर्स के कारण हो रहा है, तो डेल्टा डिस्प्लेसमेंट तो अप्लाइड फोर्स है उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसमें सेम हो रहा है तो पॉजिटिव ले लेंगे, यदि अपोजिट हो रहा है तो नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। स्पेशल केस 2, here we seen cantilever beam applied any load P, and the same beam taking at the end B, we applied the load sorry moment M। so यहाँ पे जो लोड P के कारण जो आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ एट पॉइंट बी पे कितना हुआ, थीटा, ठीक है। और मोमेंट M के कारण C पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पे डेल्टा। सो बाय द Bitts law both are equal, virtual work done by the P that is equal to virtual work done by the M। so दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, P इंटू डेल्टा इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो वो हो किसकी वजह से रहा है, M की वजह से, पर डेल्टा, ठीक है। तो P इंटू डेल्टा वर्क डन हो गया, मल्टीप्लाई है M इंटू थीटा, M इंटू थीटा, राइट। सो बोथ आर इक्वल। So here we find the theta. So you can see question, right? Can see question. This question come in GATE and also come in PSU exams. So cover these questions. For this, for the semicircular two hinge arch as shown in figure, a moment of 50 ton centimeter, 50 ton is applied at B, which is produce displacement of 0.5 centimeter at A. If concentrated load of 10 ton is applied at A, then the rotation at B will be, ये ऑप्शन है आपका, इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है।
ये आपका क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसके एक सेमी सर्कुलर हिंज आर्च है, वहाँ पे 50 टन आपको प्रोवाइड किया गया है ए पे, ये पॉइंट ए है। तो यहाँ पे आपका ए पे हमारा 10 टन आपका प्रोवाइड किया गया है लोड, एंड बी पे हमारा कोई मोमेंट प्रोवाइड किया गया है, दैट इज द 50 टन सेंटीमीटर, राइट। हियर वी फाइंड द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, एंड डिफ्लेक्शन आपका ए पे गिवन है। तो यहाँ पे हम बिट्स लॉ फॉलो करेंगे। बिट्स लॉ क्या बोलेगा कि जो लोड, जो पी के कारण जो डिफ्लेक्शन हुआ, पी इंटू डेल्टा, राइट, एंड एम इंटू थीटा। So here we put this formula, Bits law formula. Here is the which will work done by due to the P, and this is the which will work done by the M. So here put P is given 10, delta is also given at point A. So 0.5 equal to M क्या हमारा मोमेंट 50 into थीटा, थीटा गिवन है, सॉरी थीटा हमें बी पे निकालना है कितना है, ठीक है। तो दैट इज द 0.1। तो इन दिस ऑप्शन 0.1 radian. First is second is correct. Sorry, second is correct answer. Right. So students, ये आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। Now we see the next topic, Maxwell reciprocal theorem. It is special case of Bitts law, right? This is also special case of Bitts law. So here two load is P और Q है, राइट है। यहाँ पे कोई लोड P और Q वर्किंग में है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, here we taking point 1 and 2, right. This is the truss type structure. Here we taking the point 1 and 2. ट्रस हो बीम हो कोई भी हो, सब पे फॉलो करेगा, ये ट्रस के लिए कंपलसरी नहीं है, मैंने ट्रस कंसीडर किया है एज ए एग्जांपल। सो here we taking point 1 and point 2. So here is see डिफ्लेक्शन 1 2 का क्या मतलब होता है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 1 मतलब इस पॉइंट पे ड्यू टू द लोड, लोड अप्लाइड एट पॉइंट 2, राइट। डिफ्लेक्शन हमारा हो रहा है 1 पे और लोड कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, पॉइंट 2 पे। तो दैट इज डेल्टा 1 2, राइट। so here we write displacement at point 1 in the direction of AB, right, in the direction of AB due to the load P at point 2 in the direction of CD. You can see load हमारा CD point 2 पे लग रहा है in the direction of CD, and deflection हो रहा है हमारा point 1 पे in the direction of AB, right. So we write delta 1 2, right. Here we write, if we write the delta 2 1, so displacement आपका कहाँ पे होगा, 2 पे होगा, and load apply कहाँ पे होगा, 1. So जो आपका displacement होगा in the direction of CD and load applied in the direction of AB. So that's it, right. Delta 2 1, displacement at point 2 in the direction of CD due to load P at point 1 in the direction of AB, right. According to Maxwell's reciprocal theorem, delta 1 2 equal to delta 2 1. This is the Maxwell reciprocal theorem. So both are equal. Here we write both are equal. So जो आपका deflection हुआ at point 1 पे due to the point load 2, and जो आपका deflection हुआ point 2 पे due to the load applied at point 1. So both are equal. We taking equal by the Maxwell reciprocal theorem. The above law is valid when the material is linear elastic, temperature constant and sports are unyielding. तो सारे कंसिडरेशन हमने बेसिकली जो थ्योरम में भी पढ़े थे, बेट्स लॉ में भी पढ़े हैं, और आपका ये मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम में सेम assumptions है, राइट। सो हियर वी टेकिंग short example on Maxwell theorem. Here we taking a cantilever beam, here applied any load P, right, and point C is L2 at a mid span, right. So find the deflection at C due to the load P acting at B, right. Here we find the deflection at point C, the load is acting at point B. So
difference at C due to load B, that is equal to the deflection, sorry, here is deflection at C due to load B, right? यहाँ पे जो लोड बी है उस पर डिफ्लेक्शन सी पे जो रहेगा दैट इज इक्वल होगा हमारा जो लोड सी पे रहेगा, ठीक है, लोड सी पे रहेगा उसके कारण जो डिफ्लेक्शन बी पे आएगा, बोथ आर इक्वल ड्यू टू बाय द मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। तो यहाँ पे वही बताया गया है। सो हियर वी टेकिंग द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, सी पे डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं इजिली। सो बाय द स्ट्रेन एनर्जी वी फाइंड पी एल बाई टू cube, right, divided by 3 है, there is this is the deflection। टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकाली हमने, टोटल स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, उसके बाद हम उसको बाय द पी डेरिवेटिव कर देंगे तो ये हमारा डिफ्लेक्शन आ जाएगा पॉइंट सी पे। तो हमें सीधा मैंने यहाँ पे पुट कर दिया पी एल बाई टू क्यूब बाई 3i इक्वल टू पी एल क्यूब बाय, हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 24 EI। तो ये आ गया आपका डिफ्लेक्शन एट सी, राइट। तो जो डिफ्लेक्शन सी है, सी पे जो भी डिफ्लेक्शन आए दैट इज इक्वल टू द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, जिस लेवल तक, इस लेवल तक मतलब डेल्टा वन, ये तो इक्वल हो ही गया, राइट। तो हमने अब जो थीटा बी है, थीटा बी इक्वल टू थीटा सी पुट किया यहाँ पे पी एल बाई टू स्क्र बाई 2EI दैट इज इक्वल टू पी एल स्क्र बाई 8EI, राइट। तो हमने डिफ्लेक्शन यहाँ पे बी पे निकाला, ठीक है। सो हियर बी टेकिंग बोथ समेशन, ये हमारा एक डिफ्लेक्शन आया था इस पॉइंट पे, मैंने कोरस्पोंडिंग दिखा रखा है, ये इसके इक्वल होगा, तो डेल्टा टू और यहाँ पे प्लस करना है, तो दैट इज डेल्टा टू। सो वी पुट पी एल क्यूब बाई 24EI प्लस एल बाई टू पी एल स्क्र एल बाई टू पी एल स्क्र बाय 8EI। सो ये टेकिंग दिस बाय डेल्टा टू कैसे निकलेगा, हम सिमिलर ट्राइंगल रूल अप्लाई करके यहाँ पे ये डेल्टा टू निकाल सकते हैं, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे डेल्टा टू निकालने के लिए एल बाई टू मल्टीप्लाई किया फॉर दिस एंगल, ये आज आपका आ जाएगा। यदि हम एल बाई टू को थीटा सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या आ जाता है, ये आ जाता है डेल्टा टू। so that is the so therefore we multiply L2, right। so here delta B equal to 5 by 48 WL Q EI, right students। so यहाँ पे हमने by the help of the Maxwell reciprocal we solve this question। तो आपका जो मैक्सवेल रेसिप्रोकल जो थ्योरम्स है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाने के लिए इजी पड़ता है, ठीक है। या आप जो बेट्सला है उसका फॉलो करें तो वो भी आपका हेल्प करेगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लगाने में। तो बोथ आर लर्न अबव फॉर्मूला और प्रिंसिपल्स, राइट। so now we see about the principle of virtual work। here is a two cases। first is for deformable body or elastic body the total virtual work done external plus internal, total का मतलब external plus internal is zero, that is the first principle। here the external virtual work done plus internal virtual work done equal to zero, right। if W is positive then Wi is negative and vice versa। इनका जो साइन कन्वेंशन है आपका होता है जो बोथ आर अपोजिट इन साइन। यदि आपका एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है इन पॉजिटिव डायरेक्शन में, टेंसल यू कैन से टेंसल, तो आपका एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा, एक्सटर्नल क्या हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इंटरनल वर्क क्या होगा नेगेटिव डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। सो बोथ आर कैंसिल, सो दैट इज जीरो। केस नंबर 2 फॉर रिजिड बॉडी। इन रिजिड बॉडी हमें पता है स्टूडेंट्स कोई इंटरनल वर्क डिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है, इंटरनल वर्क कुछ परफॉर्म नहीं होगा। सो हियर इन रिजिड बॉडी Wi will be considered zero, right। so here we only We equal to zero। in the rigid body there is no internal deformation, therefore the total external work done is zero। we taking We, right, equal to zero। स्टार मैंने वर्चुअल वर्क डन के लिए लगा रखा है, राइट। here
we're taking in numericals on virtual work done. You can say also unit load method. For the dimensional truss shown in figure, compute horizontal component displacement at joint E due to the following movement of the support. First point of the support A moves horizontal by 0.005 मीटर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. राइट, हमारा जो डिफ्लेक्शन है गिवन है एट एंड ए पे, वो कहाँ किसकी तरफ डिफ्लेक्ट करेगा? टू द लेफ्ट साइड. एंड 0.0075 मीटर वर्टिकली डाउन. राइट, दोनों डायरेक्शन मूव करेगा, लेफ्ट साइड में भी और डाउन साइड में भी. राइट, the end C moves vertical down by 0.0025. All the member are axial rigid, do not undergo change in length. The moment of joint is due to movement oblique settlement of support. So you can see here this truss type structure is given. This is the hinge, this is the roller. So here is the two reaction is act, that is the horizontal and vertical RA और HA हमने कंसीडर किए. ये हमारा रोलर एंड है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन लग रही होगी, दैट इज द RC. तो ये अभी यदि इसकी डिटरमिनेंसी निकाले तो क्या होगा? ये डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो एक्सटर्नल वर्क हमारा जो एक्सटर्नल रिएक्शन है वो 3 है और इक्विलिब्रियम रिएक्शन भी 3 है. तो हम ये रिएक्शन इजीली सोल्व कर सकते हैं इसमें. राइट, सो नाउ हियर वी फाइंड द डिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट. ठीक है, और जो डिफ्लेक्शन हमारा गिवन है पॉइंट सी पे गिवन है, इस पे सी पे गिवन है, जो वर्टिकली डिफ्लेक्शन गिवन है 0.0025 और ए पे गिवन है, हॉरिजॉन्टली भी गिवन है और वर्टिकल भी गिवन है. राइट, तो हमारी डिफ्लेक्शन गिवन है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. लेट ड्यू टू सेटलमेंट ऑफ supports horizontal deflection at E is delta He. हमने क्या मान लिया? डेल्टा एच ई. जो डिफ्लेक्शन होगा दैट इज द डेल्टा एच ई कंसिडर किया है. सो हियर वी नो दैट डेल्टा एच ए जो हॉरिजॉन्टल आपका डिफ्लेक्शन है कितना होगा? माइनस 0.050. ठीक है, ये आपका नेगेटिव मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये किधर मूव कर रहा है? अपोजिट साइड में. डिफ्लेक्शन किस साइड में हो रहा है? ये लेफ्ट साइड में. ये गिवन है कि आपका जो डिफ्लेक्शन होगा लेफ्ट साइड में. सो दैट्स व्हाई वी टेकिंग नेगेटिव. we taking the vertical deflection that is the minus 0.0075. ये भी आपके अपोजिट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा. यू कैन सी हियर एट पॉइंट सी माइनस 0.0025. तो ये आपके डिफ्लेक्शन गिवन है एट ए पॉइंट और सी पॉइंट में. जो साइन है हमने नेगेटिव इसलिए लिए हैं क्योंकि ये जो आपका फोर्स पी लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है. ठीक है. So here we taking the equilibrium equation. Here we taking summation of all forces in horizontal direction is 0. So horizontal force क्या हमारा यहाँ पे क्या लग रहा है? HA plus P equal to 0. तो यहाँ पे HA क्या आ जाएगा? माइनस P आ जाएगा. If we taking the second equilibrium equation, the summation of all forces equal to 0. So RA plus RC क्या हो गया? 0 हो गया. Right. तो यहाँ से हमारा RC निकल जाएगा. If we taking the moment about the point A, हमें पता है हम किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे ट्रस में, तो वो उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट हमारा समेशन ऑफ मोमेंट 0 ही होता है क्योंकि हमारा ट्रस में कोई मोमेंट नहीं आता है. ठीक है, ओनली फोर्स आते हैं मेंबर्स पे. राइट, सो हियर वी फाइंड द मोमेंट. ही वी टेकिंग द मोमेंट अबाउट द ए. सो हियर वी taking RC into 8 minus P into 8 that is equal to 0. Here we find the RC equal to P. RA क्या हो गया? माइनस P. ठीक है. सो फॉर रिजिड बॉडी एक्सटर्नल विच वर्क डन इक्वल टू 0. हमारी रिजिड बॉडी है तो दैट्स वाई एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टू 0. हमें ये पता है जो विचुअल वर्क डन प्रिंसिपल है. सो हियर वी पुट WE स्टार इक्वल टू 0 एंड टेकिंग ऑल वर्क डन इक्वल टू 0. सो वर्क डन P into delta P into delta
E. Here RA into here we find the HE, that is the HE, plus RA into delta VA plus HA into delta HA, right? HA into delta HA and delta VC into RC. That is the whole work done. We take a positive, right? हमने समेशन कर दिया, that is equal to 0. अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे P डेल्टा एच ई प्लस आर ए हमारा क्या माइनस है और डेल्टा वी ए क्या है, दिस वैल्यू पुट प्लस माइनस पी माइनस 0.0050 plus P minus 0.0025, that is equal to 0. So here delta He equal to minus 0.01 मीटर. इसका किधर मूव करेगा, डिफ्लेक्शन किधर करेगा, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, मतलब लेफ्ट की तरफ मूव करेगा क्योंकि नेगेटिव साइन है, राइट. तो स्टूडेंट्स ये आपका एक क्वेश्चन कराया मैंने, ठीक है, इजी है. आप इस क्वेश्चन को आपने नोटबुक में नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए. तो एक बार फिर से इस स्लाइड को देख लेते हैं, उसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूला. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बिट्स लॉ की स्टडी की हमने. बिट्स लॉ आपका क्या डिफाइन करता है, बिट्स लॉ इज डिफाइंड दैट हियर इज द q force, right, and delta 1 star is the deflection in direction of q force due to the p, so that's why it's called virtual work done, that is equal to force p delta 2 star. p is the force, right, and delta 2 क्या है आपका, delta 2 is the deflection occurs in the direction of q, in the direction of q due to the, नहीं सॉरी, डिफ्लेक्शन डेल्टा क्यू क्या है यहाँ पे, डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ p ड्यू टू द फोर्स q, राइट. सो बोथ आर इक्वल, ठीक है, ये आपका बिट्स है. सो रिमेंबर दैट. मैंने यहाँ पे आपके केसेस कराए. यहाँ पे इन केस ऑफ मोमेंट, मोमेंट में आपका मोमेंट आएगा तो हमारा डिफ्लेक्शन आएगा, वो थीटा आएगा, स्लोप आएगा. सो सेम वही रूल फॉलो हो रहा है जो हमने ये देखा, ठीक है. जिस फोर्स के कारण जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, जिस फोर्स के कारण या जिस मोमेंट के कारण जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द अदर फोर्स डिफ्लेक्शन, राइट. यू कैन सी हियर, यहाँ पे मोमेंट है m1 अप्लाई किया है हमने और डिफ्लेक्शन कौन सा है, m1. m1 जो मोमेंट है उसके कारण जो डिफ्लेक्शन हुआ दैट इज द थीटा वन, बट एक्चुअली थीटा वन किसके कारण हुआ है, m2 के कारण हुआ है, ठीक है. m2 अप्लाई किया जब हमारा थीटा वन हुआ, मैंने इसलिए अलग अलग करके दिखाए आपको, ठीक है. और जो आपका थीटा टू हुआ वो m1 के कारण हुआ है. सो हियर इज taking theta 2 with m2, so that is the virtual work done due to the m1 और m2. मैंने ये भी लिया आपका कि आपका इस पॉइंट पे जो लोड लग रहा है तो डिफ्लेक्शन ये होगा, तो हमारा फोर्स में आपका जो मोमेंट है m थीटा दैट इज इक्वल टू p इक्वल टू डेल्टा, राइट. मैंने क्वेश्चन कराया इस पे, आप देखिए क्वेश्चन को. इसको मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम भी एक स्पेशल पार्ट है बिट्स लगा, ठीक है. वो क्या इसको करता है कि डिफ्लेक्शन एट पॉइंट वन ड्यू टू load point 2, right, that is equal to the deflection at point 2 due to the load applied at point 1, right. You can see here above loads, सारे जो लो मैंने बताए या कैस्टिग्लियानोस फर्स्ट सेकंड थ्योरम भी बताई, उसमें भी सारे ये लोज वैल्यू मतलब एजम्पशन लेके चलते हैं कि वो आपके मटेरियल लीनियर इलास्टिक होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और स्पोर्ट्स आर अनयील्डिंग, तो चीज़ें होनी चाहिए. उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन करे,
उसमें पहला जो केस है उसमें मैंने बताया कि जो आपका टोटल वर्क डन है मतलब एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दैट इज इक्वल टू 0, राइट। फॉर रिजिड बॉडी, फॉर रिजिड बॉडी में क्या होगा, आपका कोई इंटरनल आपका डिफॉर्मेशन तो होगा नहीं, इंटरनल डिफॉर्मेशन तो होगा नहीं, सो दैट्स व्हाई वी टेकिंग द इंटरनल वर्क डन इक्वल टू 0। सो हियर एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टू 0, राइट, फॉर रिजिड बॉडी केस। एंड डिफॉर्मेबल बॉडी और इलास्टिक बॉडी के लिए दोनों फोर्स इक्वल होंगे, दोनों फोर्स इक्वल टू 0 होंगे, राइट। इस पे हमने क्वेश्चन किया, देखिए क्वेश्चन को एक बार, ठीक है। सो स्टूडेंट एट लास्ट हम देखेंगे कि क्वेश्चंस एज पर एमडीओ एग्जाम कैसे आएंगे इसमें। तो आपका जो एग्जाम पर्पज से आपका यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो सकता है, कोई भी प्रिंसिपल्स या कोई भी थ्योरम्स आपसे पूछ सकते हैं कि डिफाइन द बिट्स लॉ, डिफाइन द मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम्स, एंड यू आल्सो आस्क प्रिंसिपल ऑफ विर्चुअल वर्क डन। तो ये आपके 5 मार्क्स में आ सकते हैं, इनको आप पढ़िए, ठीक है। और इसमें क्वेश्चंस आपका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के क्वेश्चन जो आएगा वो कम चांस है। जो क्वेश्चन ज्यादा आने के चांस है आपका वो स्ट्रेन एनर्जी मेथड से, कैस्टिग्लियानो थ्योरम से, और आपका जो मोमेंट एरिया मेथड है, कॉन्जुगेट मेथड है और डबल इंटीग्रेशन मेथड है। इन जो मेथड है, इन सभी मेथड से हमारा क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस है, तो प्लीज फोकस ऑन दैट। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। बाय, टेक केयर।